Distinguish between e-business and traditional business. First point, formation. E-business is easy to form. In traditional business, it takes a lengthy and complicated procedure for formation. E-business सिंपल वे में फॉर्म हो जाता है, वैसे ट्रेडिशनल बिजनेस का नहीं था. वहाँ पे फॉर्मेशन जो प्रोसीजर थी काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग थी. सेटअप कॉस्ट. इन ई बिजनेस इट टेक्स अ वेरी नॉर्मल कॉस्ट. काफ़ी कम पैसे लगते हैं. Whereas in the traditional business it took a huge capital in order to set up. काफ़ी सारा investment capital लगता है in the traditional business to start. Risk involved. In e-business the high risk involved as there is a no direct contact between the parties. यहाँ पे पार्टी फेस टू फेस नहीं होती है, इसमें रिस्क एस्पेक्ट ज़्यादा होता है. Whereas in the traditional business less risk is involved as the parties have the personal interaction between each other. Scope of business. In e-business entire world and so the scope is vast. यहाँ पे बिजनेस जो भी होता है वो ग्लोबल लेवल के पर होता है. सो यहाँ पे काफ़ी वास्ट स्कोप होता है ई बिजनेस के लिए. दिस इज़ नॉट द केस विद द ट्रेडिशनल बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ लिमिटेड टू द particular area only, so it has a limited scope. Customer interaction. In e-business there is an absence of face to face interaction. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ई बिजनेस का. Whereas in the case of a traditional business is concerned, face to face interaction is possible. Physical inspection. In e-business goods cannot be inspected physically before the purchase. जो भी आपको दिखेगा वो वेबसाइट के ऊपर दिखेगा. सो यहाँ पे कोई भी पर्सनली आप चेक नहीं कर सकते हाउ दैट goods will be. Whereas in the case of traditional business is concerned, goods can be physically inspected before purchase. Resource focus. In e-business, resource focus on demand side. Traditional business resources focus on supply side. Usage. It is useful to save the valuable time and money. ई बिज़नेस से आपका वैल्यूबल टाइम और मनी दोनों भी सेव होती है, उनकी बचत हो जाती है. वेयर एज इन द ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ कंसर्न इट इज़ एशियन, काफ़ी पुराना है एंड स्टिल इट इज़ इन यूज़. अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को लोग फॉलो करते हैं. वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज़ नॉट रीचेबल. जहाँ पर भी डिजिटल नेटवर्क यूज़ नहीं होता है वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं. Accessibility. It is available around the clock, whereas in traditional business it is available during a limited time. E-business 24 hour 365 days हो सकता है, but there are certain limitation as far as traditional business is concerned. Distinguish between e-commerce and e-business. Meaning, e-commerce involves commercial transaction done थ्रू इंटरनेट. ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस लेवल है जहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन इंटरनेट का यूज़ करके होता है, उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स. नाउ व्हाट इज़ ई बिजनेस? ई बिजनेस इज़ कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस ऑन द इंटरनेट. जो भी बिजनेस प्रोसेसिंग होती है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ इट? ई-कॉमर्स इज़ अ सब पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस जो है उसका एक सब पार्ट ई कॉमर्स है. ई बिजनेस इज़ अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स. फीचर्स. ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ई कॉमर्स में बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स का और सर्विसेज का. In e-business involves all kind of resale, post-sale efforts. यहाँ पे purchasing तो होता ही है, buying and selling. Apart from that, resale भी होता है, post-sale भी होता है. Other activities are also there in e-business. Concept. E-commerce is
narrow concept, whereas e-business is a broader concept. Transaction. It is more appropriate in B2C context. B2C यानी business to consumer. In e-business, it is used in the context of B2B, that is business to business. Which network is used? E-commerce involves mandatory use of internet. यहाँ पे internet use होता है. In e-business can involve the use of internet, intranet or extranet. Distinguish between BPO and KPO. Meaning, BPO refers to the outsourcing of non-primary activity of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी हम आउटसोर्स करते हैं, यानी किसी और से करवा के लेते हैं टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी. इससे आपका खर्चा भी कम होता है और एफिशिएंसी जो होती है काम की वो बढ़ जाती है. KPO is another kind of outsourcing whereby the functions related to knowledge and information are outsourced to third party service provider. जैसे BPO एक आउटसोर्सिंग है, वैसे ही KPO भी है, मगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. KPO में नॉलेज रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वर्क होती है, उसको वो आउटसोर्स किया जाता है थर्ड पार्टी को, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. नाउ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. BPO इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड, KPO इज़ कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. थर्ड वन, रिक्वायरमेंट. BPO रिक्वायर्स अ प्रोसेस एक्सपर्ट. यहाँ पे प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है. KPO रिक्वायर्स अ नॉलेज एक्सपर्ट्स. यहाँ पे नॉलेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें आउटसोर्स की जाती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड अ स्पेशलिटी. टेक्निक रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज़. जो काम BPO में करने वाले लोग हैं यानी एम्प्लॉयज़ है, उनमें गुड कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है. Whereas in the KPO requires a professional qualified worker. यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. देन फोकस ऑन. BPO फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस. जो लो लेवल प्रोसेस के काम है वो BPO में होते हैं. Whereas in KPO फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस. हाई लेवल प्रोसेस का काम KPO में होता है और वो उनका मेन टारगेट एरिया होता है काम करने का.